Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. So, बच्चे, we were doing this chapter, human reproduction. और इसमें आपको याद होगा हमने लास्ट टॉपिक किया था estrous cycle and menstrual cycle, and I've already discussed menstrual cycle process also. So now it's fertilization. What do you mean by fertilization? Fusion of male and female gamete to form. Yes. Fusion of male gamete and female gamete. This is male gamete, this is female gamete to form zygote. Yeah, normally we पढ़ चुके हो in plant reproduction. The same definition है. Fusion of male and female gamete to form zygote. This is called as fertilization. There are different steps. तो सबसे पहला जो होता है step है, that is approach of sperm. Now I'm going to make you write down few points, and this is not given in NCERT. NCERT में थोड़ा छोटा part किया हुआ है, but I'll try to explain in detail. तो इसमें देखो approach of sperm in one ejaculation in case of male, जब semen ejaculate होता है, about 3 to 3.5 ml of sperm is deposited into the vagina per ejaculation of sperm is deposited in vagina. मैम ये लिखना है. Yes, yes. पहले आप लोग एक बार समझ लो, फिर I'll give you time. You can write down then. So per ejaculation, about 3 to 3.5 ml of sperms they are deposited, and what helps the sperm to reach to this vagina or to the fallopian tube? So इसमें the regions which help the sperm to reach up to the vagina, उसमें सबसे पहला part आता है lashing movement of sperm या lashing movement of tail. Lashing movement of tail, सबसे पहला process यह है तो जो चीजें उसको असिस्ट करती हैं, लैशिंग मूवमेंट ऑफ टेल, दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एंड थर्ड पार्ट होता है मूवमेंट, एस्पिरेटरी मूवमेंट ऑफ द यूट्रस. तो यूट्रस भी ऐसे मूव करती है, यूट्रस में भी कुछ मूवमेंट होती है जिसकी वजह से स्पर्म रीच करते हैं अप टू फैलोपियन ट्यूब. तो ये सबसे पहला टॉपिक आएगा अप्रोच ऑफ स्पर्म. तो प्लीज राइट इट डाउन. और अभी हम इसमें एक चीज और डिटेल में पढ़ेंगे. If you when you are done, just let me know. एक्सक्यूज मी मैम. Yes. मैम जो कल हमने लिखा था फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो डिटेल में नहीं करने हमें. क्या चीज बच्चे, क्या लिखा था मैम आपने? मैम फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले में जो फेजेस हैं वो डिटेल में नहीं करने हमने, कि बस उतना ही है. हाँ, बस उतना ही था बेटे. उसमें मैंने डेज आपको लिखवा दिए थे, डायग्राम लिखवा दिया था. यस मैम, बस वही है ना. हाँ, बस वही था. मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला कंप्लीट हो गया. I'll make you write down the question answers in the end. Okay, जो important question. हाँ. तो जो चीजें हेल्प करती हैं स्पर्म को मूवमेंट करने में, that is the lashing movement of tail, prostaglandins, aspiratory movement of uterus. Can I move to the next page? Yes. Ma'am, 2 minutes.
Yes. Yes, ma'am. Okay. अब पूछा जाता है what is the speed? तो it is around 1 to 4 mm per minute. This is the speed of the sperm inside the female vaginal tract. और सिर्फ only few, क्योंकि बनते तो millions से, याद होगा, only 100 sperms reach the fallopian tube. Only 100 sperms. अब इनमें से जो इसको रोक रहा है, क्यों इतने, सिर्फ इतने ही क्यों गए? When there are millions of sperms that are produced inside the male semen, they're present inside the male semen, why only few hundred, yeah, only 100 they reach up to the fallopian tube? Because they have to cross a barrier. तो barrier में क्या आएगा? सबसे पहले region आता है thick wall of female genital tract, या जिसको बोला जाता है uterus, uterine wall. तो thick endometrium part is thick endometrium. Then is acidic pH. Acidic pH in the female genital tract. एसिड की वजह से आधे से ज्यादा स्पर्म्स मर जाते हैं. Which we have started with this topic. Some students have joined just now. We have started with this topic of fertilization. Fertilization is fusion of male and female gamete to form zygote. Please write it down quickly. Male and female fuse to form zygote. और इसमें सबसे पहला स्टेप आता है अप्रोच ऑफ स्पर्म. तो स्पर्म जो है मेल के, जो स्पर्म एक इजैकुलेशन मींस जब वो रिलीज होते हैं फ्रॉम मेल बॉडी, पर इजैकुलेशन 3 to 3.5 ml of semen is deposited inside the vagina. और जो चीजें हेल्प करती हैं स्पर्म्स को आगे मूव करने में, दैट इज लैशिंग मूवमेंट ऑफ टेल, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एस्पिरेटरी मूवमेंट ऑफ यूट्रस. तो स्पर्म जो है क्यों अप्रोच कर रहा है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में? क्योंकि स्पर्म की मूवमेंट्स को ये चीजें हेल्प कर रही हैं. And when you are done, just let me know this page. Yes, everyone. Alina, are you done? Yes, Okay, Mehak, आपने लिख लिया बच्चे? Yes, Mehak Condal, Mehak too. All of you? yes, ma'am. Okay. So अभी आपने पढ़ा sperm approach हुआ per ejaculation में 3.3. Okay, I'll repeat from the starting. अच्छा हमने, okay, no worries बेटे. तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है फर्टिलाइजेशन है. फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट टू फॉर्म जायगोट. तो आज जो हम ये टॉपिक करने लगे हैं दैट इज फर्टिलाइजेशन. और फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट. अब जो मेल गेमीट था स्पर्म, उसने फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट तक जाना है. तो सबसे पहले स्पर्म दे अप्रोच इनसाइड द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट. जब मेल स्पर्म रिलीज होते हैं मेल बॉडी से, तो एक इजैकुलेशन में एक टाइम में अराउंड 3 to 3.5 ml ऑफ स्पर्म इज डिपॉजिटेड इनसाइड द फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट. कहते हैं क्या क्या चीज नहीं शो रही. स्क्रीन नहीं शो हो रही. इज दिस विद एवरीवन? मुझे स्क्रीन विजिबल है? विजिबल है. मैम. बच्चे किसको नहीं हो रही? क्लीन किसको नहीं दिख रहा? यस, स्पीक आउट. मैम महक. बच्चे आप दोबारा लॉग इन करो. आई एम वेटिंग. आप दोबारा लॉग इन करो. तो बाकियों को क्लियर है?
तो स्पर्म जो है एक इजैकुलेशन में 3 to 3.5 ml ऑफ स्पर्म दे आर डिपॉजिटेड इन द वेजाइना। कहते हैं इसको हेल्प किसने किया? तो हेल्प किया स्पर्म की टेल मूवमेंट ने, लैशिंग मूवमेंट ऑफ टेल। कुछ हॉर्मोन्स थे, प्रोस्टाग्लैंडिन, यूट्रस ने भी, फीमेल यूट्रस वॉल ने भी उसको हेल्प किया। तो these are the three things which help the sperm to reach into the vaginal tract of female. तो ये सब चीजें इसकी मूवमेंट जो है ये हेल्प कर रही हैं। यस महक, इज दिस अवेलेबल नाउ? यस मैम। ओके, तो आपको ये अब आपने लिख लिया बेटे, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट आई कैन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा महक, टेक अ स्क्रीनशॉट। मैम मैंने एज अ बैरियर वाली स्लाइड दिखा दो एक बारी। ओके यस। तो कहते हैं क्या स्पीड आती है स्पर्म की? स्पर्म की मूवमेंट की स्पीड होती है 1 to 4 mm per minute। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी स्लो मूवमेंट। स्पर्म की मूवमेंट विद इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट बहुत स्लो है, और सिर्फ 100 जो है स्पर्म्स वो जाते हैं फेलोपियन ट्यूब तक। मिलियंस प्रोड्यूस होते हैं एंड ओनली फ्यू हंड्रेड रीच अप टू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि बैरियर है। बैरियर क्या था? एंडोमेट्रियम वॉल, एसिडिक pH of female genital tract। तो ये दो चीजें, एंड देयर इज अनदर पॉइंट विच इज, अब क्लियर है सबको? जिसको नहीं समझ आए प्लीज आस्क मी। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है फेगोसाइटोसिस। इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट कहते हैं आधे से ज्यादा खाए जाते हैं, स्पर्म्स को खा लेते हैं। यूट्रस में कुछ सेल्स ऐसे हैं which are phagocytic in nature and they eat up these sperms। तो एक तो ओके, I'll repeat once again, no worries। हम पढ़ रहे हैं बेटे, टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन। तो कहते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट। तो पहले स्पर्म को पहुंचना पड़ेगा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट गेमीट तक, एग तक, जो फेलोपियन ट्यूब में। तो सबसे पहले स्पर्म जो है अप्रोच होते हैं, कैसे आते हैं? जो मेल है वो डिपॉजिट करते हैं एक इजैकुलेशन में इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट अराउंड 3 to 3.5 ml ऑफ स्पर्म। जो स्पर्म्स को वहां जाने में हेल्प करता है वो क्या क्या है? हॉर्मोन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, टेल मूवमेंट ऑफ स्पर्म, स्पर्म में एक फ्लैजिला था, टेल मूवमेंट थी, एंड एस्पिरेटरी मूवमेंट ऑफ यूट्रस। यूट्रस की जो मूवमेंट है वो भी हेल्प करती है स्पर्म को टू रीच अप टू द फेलोपियन ट्यूब। स्पीड कितनी है उसकी? 1 to 4 mm per minute, वेरी स्लो। और सिर्फ 100 जो स्पर्म्स हैं दे रीच अप टू फेलोपियन ट्यूब आउट ऑफ मिलियंस। याद होगा हमने पढ़ा था स्पर्म जो है माइटोटिकली डिवाइड होते रहते हैं, एंड आउट ऑफ दिस million of sperms only 100 reaches up to the fallopian tube। कहते हैं क्यों सिर्फ 100 रह गए? क्योंकि ये सब बैरियर्स आए, एंडोमेट्रियम वॉल को पार नहीं कर पाए, थिक वॉल थी। पीएच फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पीएच एसिडिक होता है, आधे से ज्यादा एसिड में मर गए। कई सेल्स जो है फेगोसिटिक नेचर की वजह से उन्होंने खा लिए। तो दीज आर दी रीजंस कि दे आर नॉट एबल टू रीच अप टू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है, आई गेस सबको क्लियर है? यस महक, क्लियर है? यस मैम। कैपेसिटेशन। अब ये टर्म बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टर्म है। कैपेसिटेशन मतलब इट इज द कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स टू रीच अप टू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो स्पर्म्स को ऐसा क्या करना पड़ता है कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट तक जाए? तो स्पर्म्स दे अटेन मैच्योरिटी, फंक्शनल मैच्योरिटी, फंक्शनली वो एक्टिव हो जाते हैं, फंक्शनल मैच्योरिटी इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब स्पर्म अपने बॉडी से बाहर है, मेल बॉडी से बाहर है, फीमेल बॉडी में, फॉरेन बॉडी में, तो उसको मेच्योर होना पड़ेगा, थोड़ा एक्टिव ज्यादा होना पड़ेगा। दिस इज नोन एज कैपेसिटेशन। Sperms attain functional maturity in female genital tract।
और इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं. Can I move to the next page? Yes, Achha, ma'am. have you? Yes, Okay. ma'am. All of you have written this page? Yes? Yes, ma'am. Okay. देखो सिंपल टर्म्स में जब आप लिख लोगे, I'll repeat once again जो आप लोगों ने लिखा है. एक्चुअली मैं एनसीईआरटी में इतना कुछ नहीं दिया हुआ, सो आपको थोड़ा सा अगर ज्यादा अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको स्टेप्स पता चलेंगे, बिकॉज एक कैपेसिटेशन टर्म आ जाती है. तो क्या स्पर्म्स ने मैच्योरिटी में क्या क्या किया? कैल्शियम आयंस को एब्जॉर्ब किया. एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट. किसकी वजह से, किसके लिए किया? टू मेक स्पर्म्स मोर एक्टिव. To make sperms more active, calcium ions are absorbed from the female genital tract. Next, इसी में एक पॉइंट आता है रिमूवल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स. कुछ प्रोटीन्स जो मेल बॉडी में थे, मेल स्पर्म में थे, वो रिमूव हो जाते हैं ताकि वो और लाइट हो जाए और उसकी मूवमेंट तेज हो जाए. रिमूवल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स. अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है. सेकेंड आपने अभी पढ़ा था अप्रोच ऑफ स्पर्म, फिर कैपेसिटेशन. कैपेसिटेशन के बाद अब आप पढ़ रहे हो नेक्स्ट स्टेप, जिसमें वो एक चीज प्रोड्यूस करते हैं, रिएक्शन होता है फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन रिएक्शन. बड़ा जरूरी है. कहते हैं मेल स्पर्म जो ह्यूमन स्पर्म है वो ह्यूमन एग के साथ ही फर्टिलाइज करता है. क्या किसी और जानवर का स्पर्म फीमेल एग ह्यूमन एग के साथ फर्टिलाइज कर सकता है? कैन एनीवन टेल yes or no? No, ma'am. No, in nature it is not feasible. Naturally it cannot fuse because of this phenomenon of fertilizing anti-fertilization. ये रिजेक्ट कर देते हैं. फर्टिलाइजन कौन सिक्रीट करता है? सिक्रीटेड बाय ओवम. Ovum. Yes, it is secreted by ovum. और ये प्रोड्यूस करता है कोई साइट्स विच आर नोन एज स्पर्मोफिलिक. मतलब स्पर्म वहां से एंटर कर सकते हैं. सपोज दिस इज एन एग, तो इसमें कहीं कहीं साइट्स आ जाती हैं, बहुत कम, जहां पे स्पर्म अटैच कर सकते हैं. तो दीज आर कॉल्ड एज स्पर्मोफिलिक साइट्स एंड दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय एग ओनली. एंटी फर्टिलाइजन इज सिक्रीटेड बाय, यस, कौन सिक्रीट करेगा? ऑब्वियसली Sperms. yes, it is secreted by sperms, and this helps in creating या maintaining uniqueness of sperms. इसकी वजह से ही sperms, they are unique, they maintain their individuality. So anti-fertilization is secreted by sperms to maintain their uniqueness. इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है, अब जब फर्टिलाइजन आ गया और एंटी फर्टिलाइजन किसने सिक्रीट किया? स्पर्म ने. तो दोनों कांटेक्ट में आते हैं, दोनों केमिकल रिलीज करते हैं. देखो इसने केमिकल रिलीज किया, जहां जहां पॉइंट्स बनते थे वहां वहां स्पर्म्स अटैच हो जाएंगे. स्पर्म ने भी कुछ अपना एक केमिकल रिलीज किया. दोनों केमिकल्स अगर यहाँ पे था, यहाँ केमिकल नहीं था, फ्यूज नहीं हो पाया, यहाँ पे नहीं हो पाया, सिर्फ जहां जहां हो सकते हैं वहीं पे होंगे. तो लेट्स से कि 3 पॉइंट्स पे स्पर्म्स अटैच हो गए जहां पे ये फर्टिलाइजन सिक्रीट हुआ था और इसके साथ एंटी फर्टिलाइजन इसका स्पर्म का था. अब स्पर्म क्या करेगा? स्पर्म विल ट्राई टू रप्चर द वॉल ऑफ एग. तो इसमें नेक्स्ट स्टेप आता है रिलीज ऑफ स्पर्म. स्पर्म विल ट्राई टू रप्चर द वॉल ऑफ एग which is very thick. क्योंकि याद है कितनी लेयर्स थी? Anyone who will tell me the layers of? Ma'am, 3.
three layers. Can you name them? Ma'am, zona radiata, perivitline, and corona. Corona radiata, zona pellucida, and perivitline membrane. Okay. The release of sperm, they secrete a lysine protein so that they can penetrate corona radiata. पहले तो बाहर यही थे ना कोरोना रेडिएटा. एग के बाहर क्या था? ये जो ये बाहर रेज निकल रहे थे, इनको क्या नाम दिया था? कोरोना रेडिएटा. तो पहले तो यही रिमूव करेंगे. कोरोना रेडिएटा, पेनिट्रेशन, पेनिट्रेटिंग एंजाइम. दूसरी लेयर पेरीविटलाइन मेम्ब्रेन को रप्चर करने के लिए दे विल सिक्रीट hyaluronidase, HYALORUNIDASE, hyaluronidase. और lastly they'll rupture the wall. Yes, कौन सी wall होगी सबसे innermost? Perivitline. Yes, it is perivitline और zona pellucida. Zona pellucida और perivitline दोनों को रिमूव करने के लिए acrosin, which digest the major layer which is zona pellucida. तो अगर आपको याद हो 3 लेयर्स ही, तो तीनों को उसको रप्चर करके फिर स्पर्म पेनिट्रेट हो सकता है. तो अगर एक टाइम पे 4 स्पर्म्स लगे हैं तो उनमें से जिसने सबसे पहले ये प्रोसेस कर लिया वो एंटर कर सकता है. और वो एंटर करने के लिए उसको एक कोन बनाना पड़ता है. सपोज ये इसको टाइम लग गया, इसको टाइम लग गया, इसको टाइम लग गया, तो यहाँ पे एग इसके लिए रिसेप्शन कोन बनाएगा. तो इसमें नेक्स्ट स्टेप आएगा फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन. रिसीव करने के लिए, स्पर्म को रिसीव करने के लिए दे विल फॉर्म दिस कोन. तो नेक्स्ट स्टेप आता है इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन. इतना इजी नहीं है स्पर्म का एंटर करना. अभी तक आप यही पढ़ते आ रहे थे कि बहुत जल्दी से इसमें स्पर्म में पेनिट्रेट कर जाता है स्पर्म. फॉर्मेशन ऑफ reception cone, or it may be also called as fertilization cone. Alina, आप ये पढ़ रहे थे? I think there is some network issue at your end. तो ये sperm जो है egg wall को 3 wall थी, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलिसिडा, पेरिविटलाइन, तीनों को डाइजेस्ट करता है ये with the help of these enzymes. पहला penetrating enzymes और corona radiata, hyaluronidase for perivitline membrane, acrosin for zona pellucida. स्पर्म लाइसिन करेगा, उसको तोड़ेगा उस वॉल को, फिर अंदर फॉर्म करता है एक रिसेप्शन कोन. प्लीज राइट इट डाउन. आप दोबारा डिक्टेट करोगे? यस यस, आप ये लिख लिए बेटे, जो स्लाइड पे लिखा है वो लिख रहे हो उत्कर्ष? आई विल रिपीट वंस अगेन. हाँ लिख लिया ना? कैन आई? लिख लो बेटे, लिखो. एंड व्हेन यू आर डन जस्ट रेज योर हैंड. बी क्विक. रिलीज ऑफ स्पर्म. ओके. अच्छा, स्पर्म जो है ना, इधर देखो, जिसको नहीं समझ आया, क्योंकि जो एग के बाहर 3 लेयर्स थी. पहले तो ये लेयर्स थी कोरोना रेडिएटा, दूसरी लेयर थी पेरिविटलाइन मेम्ब्रेन, सॉरी जोना पेलिसिडा, फिर लेयर थी कोरोना पेरिविटलाइन मेम्ब्रेन. तो ये कोरोना रेडिएटा, जोना पेलिसिडा, पेरिविटलाइन मेम्ब्रेन को रप्चर करने के लिए दे सिक्रीट सम लाइसिन. सबसे पहले ये कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करेंगे, ये कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम.
चीर के जाना है, इसमें से पेनिट्रेट करते हुए जाना है। फिर इसके बाद जोना पेलिसीडा, हियालुरोनिडेज और फिर लास्ट में एक्रोसिन। तो ये सारी लेयर्स को रप्चर करना है बिकॉज दे हैव टू रीच अप टू दिस रीजन दैट इज न्यूक्लियस ऑफ फीमेल। और जब स्पर्म ऐसे आ जाता है तो 3-4 जगह से रिसेप्टिविटी बनती है। जब ये प्रोसेस तीनों में हो जाए, ये तीनों प्रोसेस हो जाए, सिर्फ वो स्पर्म एंटर कर सकता है इसमें, और उसको रिसीव करने के लिए दे फॉर्म अ कोन व्हिच इज नोन एज रिसेप्शन कोन। क्लियर नाउ? I'll repeat once again, don't worry, सारा प्रोसेस I'll repeat once again. सिर्फ नोट्स अच्छे बना लो because this step is not given in NCERT. So I've used higher class books ताकि आप लोगों को कोई चीज मिस ना हो आपके नीट के लिए, बिकॉज इस चैप्टर की वेटेज बहुत ज्यादा है फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। Okay, I'm moving to next page now. Next step is start of meiosis 2. फीमेल एग जो है meiosis 2 स्टार्ट करता है और वो फॉर्म करता है सेकेंडरी oocyte से ooted और एक पोलर बॉडी। तो आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द एग इट शोज सेकेंड डिवीजन, सेकेंड मेयोटिक डिवीजन, एंड फॉर्म करेगा एक एग और एक पोलर बॉडी। आई एम रिपीटिंग, जैसे ही स्पर्म एंटर करता है फॉर्मिंग रिसेप्शन कोन, तो यहाँ पे जो फीमेल एग है वो अपने आप को meiosis 2 से फिर से डिवाइड कर देगा, एक एग में और दूसरा पोलर बॉडी में। तो meiosis 2 पूछा जाता है, meiosis 2 कब होती है एग्स में? तो इट occurs आफ्टर द पेनिट्रेशन या फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। और जो एग है उसके साथ अटैच हो जाती है पोलर बॉडी ऐसे। और यहाँ पे स्पर्म है विद फर्टिलाइजेशन कोन। Now coming to next point. Formation of fertilization membrane. Formation of fertilization membrane which prevents polyspermy. बहुत सारे स्पर्म्स एंटर ना कर पाए, it prevents polyspermy. एक टाइम पे सिर्फ एक स्पर्म एंटर करे तो ये देखो, ये ऐसे एक मेम्ब्रेन फॉर्म कर लेते हैं। जैसे रिसेप्शन कोन बना, दे फॉर्म अ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन विच प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। एक टाइम पे सिर्फ एक स्पर्म एंटर कर सकता है। और फिर अल्टीमेटली लास्ट प्रोसेस होता है विच इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट, फ्यूजन ऑफ गेमेटिक न्यूक्लियर। फ्यूजन ऑफ गेमेटिक न्यूक्लियर। तो इसमें अब ये एग न्यूक्लियस है, इधर से रिसेप्शन कोन से आ चुका है मेल गेमीट, तो ये स्पर्म है, ये एग है, दोनों फ्यूज करते हैं और फॉर्म करेंगे जाइगोट। If you have written all the parts, then I'll repeat once again. इसमें देखो, सबसे पहले जो आज हमने टॉपिक स्टार्ट किया, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट अल्टीमेटली क्या बनाना था? जाइगोट। तो प्लीज लुक ऑन योर स्क्रीन। तो स्पर्म जो है फीमेल बॉडी में आ चुका है वेजाइनल ट्रैक्ट में,
और एक इजैकुलेशन में मेल जो है रिलीज करते हैं 3 to 3.5 ml ऑफ स्पर्म। स्पर्म को जो मदद की जिसने यहाँ पे रहने के लिए वो थी टेल मूवमेंट, लैशिंग मूवमेंट ऑफ टेल, हॉर्मोन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड एस्पिरेटरी मूवमेंट ऑफ यूट्रस, यूट्रस की मूवमेंट है। ओके, ये चीजें हेल्प किया। फिर इसके बाद दूसरा आता है, अगर हम स्पर्म की मूवमेंट देखें तो इट इज अराउंड 1 to 4 mm per minute and only 100 sperms reaches up to the fallopian tube। तो क्या चीजों ने बैरियर की तरह एक्ट किया? तो बैरियर थे थिक एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूट्रस, एसिडिक पीएच ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। पीएच बताया था आप लोगों को, क्योंकि जो फीमेल जब हम लोग यूरिनेट करते हैं तो एसिडिक होता है, तो ट्रैक्ट इज एसिडिक। स्पर्म्स will not be able to survive in this acidic medium, तो आधे से ज्यादा मर जाते हैं। Lastly, phagocytosis in female genital tract, तो कुछ सेल्स उनको खाना शुरू कर देते हैं because they are foreign body। तो जो स्पर्म्स बचते हैं जिनकी कैपेसिटी होती है, कैपेसिटेशन इज व्हाट? स्पर्म्स attain maturity in reproductive tract, they become more mature। और जब वो मेच्योर होते हैं स्पर्म्स, दे बिकम मोर मेच्योर इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। दैट प्रोसेस इज नोन एज कैपेसिटेशन। जो बचे हुए रह गए वो सरवाइव करते हैं, क्यों? बिकॉज दे आर मेच्योर, दे आर मोर एक्टिव आउट ऑफ द अदर्स। तो जो बच गए उनको बोलते हैं कैपेसिटेशन। तो स्पर्म्स अटेन मेच्योरिटी इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। कैपेसिटेशन टर्म इज वेरी कॉमन, बहुत बच्चों को नहीं समझ आती, तो अब आप लोगों को पता चल गया है कि millions of sperms enter into female genital tract, only few are able to survive, और वो survive इसलिए करते हैं because they have attained maturity। क्या maturity उन्होंने attain की? They have absorbed calcium ions and they have removed their glycoprotein। This is the maturity they have attained। अब जब वो फीमेल फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच गए तो वहां एक स्पेशल रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन। फर्टिलाइजिन जो केमिकल है दैट इज सिक्रीटेड बाय ओवम and it creates spermophilic sites। साइट्स को ऐसी जगहें बनाता है जहां स्पर्म्स को अट्रैक्ट करता है। एंटी फर्टिलाइजन सिक्रीटेड बाय स्पर्म्स, दे मेंटेन देयर यूनिकनेस, मतलब they will fertilize only with female egg of humans। Human sperm will fertilize only human female egg। तो this is because of anti fertilizing। फिर उसके बाद स्टेप कौन सा आता है? स्पर्म दे आर रिलीज्ड। स्पर्म जो है उसकी टेल निकल जाती है, बाकी अंदर वाला पार्ट आता है। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि दे हैव हेड, नेक, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। सब कुछ खत्म हो जाएगा इसमें, ये इसका नेक रीजन से नीचे ना उसको टेल चाहिए, ना मिडिल पीस चाहिए, ना नेक रीजन चाहिए। तो सिर्फ ये रह जाता है पार्ट बिकॉज इट हैज न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस आता है एक तो, और इसमें ये एक्रोसोम में एंजाइम आते हैं। एक्रोसोम में जो सबसे पहला एंजाइम है उसका नाम ये है हियालुरोनिडेज, और ये है मेल गमीट न्यूक्लियस, मेल न्यूक्लियस। तो बाकी सब खत्म हो जाता है, ये खत्म हो जाएगा ये पार्ट। स्पर्म लाइसिन में 3 मेम्ब्रेन्स को वो डीजनरेट करता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। पहली मेम्ब्रेन का नाम था कोरोना रेडिएटा, दूसरी मेम्ब्रेन का नाम था पेरीविटलाइन मेम्ब्रेन, थर्ड मेम्ब्रेन का नाम था जोना पेलिसीडा। तो ये तीनों मेम्ब्रेन्स रप्चर करता है स्पर्म लाइसिन। अब वो बैरियर हटा चुका है और फीमेल उसको एक्सेप्ट करने के लिए रिसेप्शन कोन फॉर्म करती है, फीमेल एग। और जैसे ही वो पेनिट्रेट करने के लिए एंटर करता है तो फीमेल में एग में मियोसिस 2 होती है विच प्रोड्यूसेस एग एंड पोलर बॉडी। इससे पहले प्राइमरी oocyte था which changes into secondary oocyte। अगर याद हो, आपको पता होगा फीमेल में एक एग होता है, 2 पोलर बॉडीज। oogenesis में हमने अच्छे से पढ़ा था। तो एक पोलर बॉडी पहले बन चुकी है, जो लास्ट पोलर बॉडी है वो इसकी मियोसिस 2 के बाद बनती है। अब फीमेल एग जो है मेच्योर हो चुका है आफ्टर दिस मियोसिस 2, and then they form a fertilization, egg will form a fertilization membrane
टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, क्योंकि एक एग जो है एक टाइम पे एक ही स्पर्म को एक्सेप्ट करेगा। तो जहां पे रिसेप्शन कोन है उसको छोड़ के बाकी सब जगह ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन आ जाती है, विच प्रोटेक्ट दिस एग फ्रॉम दी पॉलीस्पर्मी, विच प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, बहुत सारे स्पर्म्स ना एंटर करें। Next is fusion of male and female gamete. Lastly, this sperm enters the cytoplasm, the exoplasm of the egg, and then it fertilizes with the egg to form zygote. I guess सबको ये points clear हो चुके हैं. If yes, then just raise your hand. Then I'm coming to next topic, that is significance of fertilization. Okay, okay, got it. ठीक है बच्चे. Now write down the heading, significance of fertilization. सिग्निफिकेंस में लिखो क्या इसके फायदे होते हैं। सबसे पहला सिग्निफिकेंस लिखो, फ्यूजन ऑफ टू गेमीट्स दैट लीड्स टू जेनेटिक वेरिएशन। सिग्निफिकेंस में फ्यूजन ऑफ टू गेमीट्स दैट लीड्स टू जेनेटिक वेरिएशन। Next point, meiosis 2 starts in female egg. पता है ना? In case of egg, meiosis 2 starts. Next point, cytoplasmic content is retained by the egg. Okay, first point is fusion of two gametes lead to genetic variation. Fusion of two gametes leads to genetic variation. Fusion of two gametes leads to genetic variation. Next point दिया आपको मैंने, meiosis 2 starts in female egg. तो जब fertilization होगी तभी meiosis 2 होगी, उससे पहले हुई नहीं थी, तो egg was not mature. Next point is cytoplasmic content is retained by the egg. Cytoplasmic content is retained by the egg. Next point, egg becomes, okay, second point, third point लिख लो, cytoplasmic content is retained by the egg. कहते हैं सारा का सारा साइटोप्लाज्म एग में चला जाता है। Cytoplasmic content is retained by the egg.
Egg becomes metabolically more active. Egg becomes metabolically more active. Egg becomes metabolically more active. Last point लिखो. Centriole of sperm helps in first zygotic division. Centriole of sperm helps in first zygotic division. तो सेंट्रियोल स्पर्म का जो सेंट्रियोल है वो हेल्प करता है zygotic. अब now I'm going to start with a very new topic, that is cleavage of zygote. आपकी एनसीईआरटी में फ्यूजन जो दिया हुआ है that is a very short topic, सिर्फ एक पेज में दिया हुआ है, तो आप इसे भी साथ में रीड करना. इसमें स्टेप्स आ गए, आपको प्रोसेसेस बताएं क्या क्या स्टेप वाइज प्रोसेस होता है, स्पर्म में क्या चेंजेस आते हैं, एग में क्या चेंजेस आते हैं. नाउ वी आर मूविंग टू दिस न्यू टॉपिक विच इज क्लीवेज ऑफ जाइगोट. अब जाइगोट बन चुका है, हम सब एक सेल से बने हैं अपनी मदर से, मदर बॉडी में, एंड दैट सेल इज जाइगोट. जस्ट इमेजिन सिर्फ एक सेल डिवाइड करता है और पूरी बॉडी फॉर्म करता है. तो जो हमारी बॉडी बनी है दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल सेल विच इज कॉल्ड एज जाइगोट. तो जाइगोट जो है दैट इज फॉर्म्ड इन द रीजन विच इज fallopian tube region, ampular region of fallopian tube. अगर आपको याद हो हमने फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट किया था ये, तो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में दिस इज fallopian tube. fallopian tube में fundus, ampulla, isthmus. This region of ampulla region where fertilization occurs, ampulla region of fallopian tube कह दो, ampulla region of oviduct कह दो. So in some books it is given ampulla region, fertilization occurs in ampulla region. In your NCERT it is given as ampulla isthmic region. ये isthmus था, ये ampulla था, तो कहते हैं इन दोनों के बीच के जंक्शन में. तो आपकी NCERT में गिवन हुआ है इट इज इन दी ampulla isthmic junction, दोनों के बीच में. But the correct answer is ampulla. But you have to go with NCERT. For NEET, you'll say it is the ampulla region. तो क्वेश्चन आता है, where does fertilization occur in female? It is the you may ampulla. Yes, ampulla isthmic junction. Okay, ampulla isthmic junction of yes fallopian tube. yes fallopian tube और oviduct. तो अब जब वो जाइगोट बन चुका है, आप लोग पहले एक बार समझ लो, जब वो जाइगोट, ये देखो यूट्रस से उसने क्रॉस किया, स्पर्म्स यहाँ से मूव हुए, स्पर्म्स को यहाँ तक पहुंचना पड़ा, एग रिलीज हुआ यहाँ से, ये ओवरी है, ओवरी में जो 14th डे हुआ तो एग भी रिलीज हुआ. तो एग को पहुंचना है यहाँ तक, स्पर्म को पहुंचना है, दोनों जब ये यहाँ मिले देन देयर इज अ फ्यूजन और ये पूरे प्रोसेसेस हुए. दिस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन में बना जाइगोट. नाउ दिस जाइगोट मूव्स बैक टू द यूट्रस. ये जो जाइगोट है इट विल स्टार्ट मूविंग या रोलिंग टुवर्ड्स द यूट्रस. तो ये जब रोल डाउन होता है नीचे की तरफ तो ये डिवाइड होगा साथ में. तो इट डिवाइड्स इनटू, सॉरी, पहले 1 से 2 सेल बनेंगे जाइगोट के, फिर 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, फिर दे कीप ऑन डिवाइडिंग एंड फॉर्म अ स्टेज व्हिच इज लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स. जैसे
अंगूरों का गुच्छा होता है, that is why it is called as morula. Morula stage is bunch of cells. Morula stage जब वो बहुत सारे गुच्छा आ जाता है सेल का, they keep on dividing, and when it reaches the uterus wall या endometrium wall थी, अगर आपको याद हो, यूट्रस में 3 walls होती हैं, perimetrium, myometrium, endometrium. This is the thickest wall. तो endometrium wall बहुत ज्यादा इसमें ब्लड सप्लाई आ जाती है, इट बिकम्स थिक, क्योंकि अब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा, और कहते हैं जब मेंस्ट्रुएशन होती है तो यही वॉल रप्चर होती है along with this vascular lining, blood vessels. तो ये सारी की सारी वॉल या lining along with this blood vessels, it is eroded out. So sometimes it is called as weeping of womb, crying of womb, क्योंकि फ्लश आउट होता है ये सारे की सारी वॉल, और हर महीने नई बन रही है. लेकिन अब जब फर्टिलाइजेशन हो चुकी है तो देयर इज नो नीड फॉर रप्चरिंग दिस, तो ये इट बिकम्स मोर वैस्कुलर, मोर ग्लैंडुलर. एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम प्लीज ये वाला पार्ट दोबारा समझा दो. हाँ, मैं रिपीट करते बेटे. तो अच्छा ये देखो, जब एग रिलीज हुआ, दिस एग इज रिलीज्ड ड्यूरिंग ओव्यूलेशन. तो ओव्यूलेशन में एग रिलीज हुआ, इधर से स्पर्म्स एंटर किए, देयर इज अ फर्टिलाइजेशन इन द एम्ब्रियोस्टोमिक जंक्शन. तो जैसे ही जाइगोट बना, जाइगोट इज सिंगल सेल्ड. जाइगोट डिवाइड हुआ 2 में, 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 से 16 में, 16 से 32 में. दिस इज हाउ दे आर डिवाइडिंग. जब वो इरेगुलर सेल मास बन गया, आप इमेजिन कर सकते हो, दिस इज नॉट सिमेट्रिकल डिवीजन, इरेगुलर डिवीजन, जैसे सेल्स का गुच्छा आ जाता है तो वैसे वो डिवाइड करते हैं, और उस बंच को हम नाम देते हैं मोरुला स्टेज. And for this they'll take around 24 hours to change from this zygote to 8 या 16 cell stage. It will take around 24 hours. और जब ये मोरुला स्टेज आती है, मोरुला स्टेज के बाद एक और स्टेजेस हैं, डिफरेंट स्टेजेस आर देयर, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल. जैसे ये स्टेज ये नीचे आती है, इट अटैचेस इटसेल्फ टू द वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम वॉल के साथ अटैच हो जाती है, and endometrium wall is highly vascular and glandular. मैम ये जो डिवीजन होती है ये कंटिन्यूसली होती रहती है? Yes, days में होगी, days में, but it is continuous. Yes. तो अगर आप देखो, इसमें मैंने आपको बताया सिंगल था, डिप्लॉयड जाइगोट with layers, इसके बाद membranes होंगी, protective membrane, then it will divide into 2 membranes. they degenerate, खत्म हो जाएंगी membranes. फिर ये डिवाइड होगा 3 में, फिर डिवाइड होगा 4 में. आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट. डिवाइड होते जा रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, फिर ये अनइक्वल डिवीजन शुरू कर देता है और ये बंच ऐसे फॉर्म हो जाता है 8 सेल में, फिर 16 सेल में, फिर ये एकदम कंपैक्ट सा स्ट्रक्चर बन जाता है आफ्टर कंपैक्शन, और इस स्टेज को हम नाम देते हैं मोरुला. and morula stage is around for 16 to 32 cell stage. Please write it down. फिर इसके बारे में लिखवाती हूँ मैं आपको. और अगर ये समझ आ गया आपको, बिलीव मी, बहुत सारे नीट के क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको ये प्रोसेस क्लियर हो गया. Draw this diagram, then I'll move to the writing part. Are you done? Can I move to the next page? मैम प्लीज वेट.
Yes. डन मैम। Okay. तो अभी ये जो ब्लास्टुला के बाद मॉड्यूला स्टेज आई है, प्लीज राइट डाउन फ्यू लाइंस अबाउट दिस। फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोमियर्स, ये छोटे छोटे सेल्स को ना बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोमियर्स, ब्लास्टोमियर्स। There is unequal division. मैम ये इसी में लिखना है अनइक्वल डिवीजन। हाँ ये यस अच्छा म्यूट योरसेल्फ, इसमें ये फॉर्मेशन ऑफ मॉडुला में ही आ रहा है, जो आपने फर्स्ट हेडिंग लिखी है ना मॉडुला, उसके बारे में लिख रहे हो आप। डिवीजन इज अनइक्वल, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोमियर्स। लिख लिया? अनइक्वल डिवीजन, अनइक्वल फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोमियर्स। प्लाज्मोगेमी इज इनडिटर्मिनेट। किस बच्चे को ये बात याद है जब मैंने आपको बताया था एग में एक होता है एनिमल पोल, एक होता है वेजिटल पोल? किसको याद है ये बात? यस मैम। यस यस यस। तो जो यस कहते हैं मैम। यस, तो ये जाइगोट जो बना है, इट विल शो अनइक्वल डिवीजन। डिवीजन में मतलब प्लाज्मोलाइसिस या प्लाज्मो गैमी बोलते हैं। तो डिवीजन जो है इनडिटर्मिनेट, मतलब ये ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, बट इट विल ऑलवेज बी फ्रॉम एनिमल वेजिटल पोल। ये एक्सेस ये यूज करेगा, सॉरी एक्सेस इसका हमेशा यही होगा, either from this side or this side or this side, but never along this animal parallel to this. It will always be perpendicular to animal vegetal pole axis. Got it? तो इसमें लिखो indeterminate, इसका मतलब होता है indeterminate, and this is a characteristic feature of human beings. तो ये डिट्यूरोस्टोम्स हम बोलते हैं, तो ये लिख लो, it is a characteristic feature of deuterostomes. आप लिख लो ये टर्म, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज ड्यूटेरोस्टोम। एंड डिवीजन इज कंप्लीट, इसलिए इसको बोलते हैं होलोब्लास्टिक। तो मैंने 3 चीजें बताई हैं आप लोगों को। डिवीजन इज अनइक्वल, इनडिटर्मिनेट, होलोब्लास्टिक। ये 3 चीजें आती हैं इन केस ऑफ ह्यूमन एग। ठीक है अनुभव? मैम पहले वाली शीट नीचे करना। ओके, इट इज अनइक्वल, indeterminate and holoblastic. Holoblastic मतलब complete division. डन। Okay. Next is formation of blastula. और अगर आप सिर्फ समझ लोगे तो भी more than enough है, because I don't want to hurry in this topic, because ये topic थोड़ा सा tricky है, मुश्किल है, NCERT में इतना डिटेल में नहीं है, तो it is better if you just listen to me carefully. Next stage is formation of blastula, which is also called as blastocyst. कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स किसके लिखवाए थे अभी? नहीं, वो करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिटीरोस्टोम। डिटीरोस्टोम वो होते हैं जो ह्यूमन, जैसे हम लोग है ना, मैमल्स हैं, हमारा जो एग है ना, एग जो मतलब जाइगोट बनता है, उसमें कौन सा रीजन एनस बनना है, कौन सा माउथ, वो फिक्स्ड होता है, और हमारे में पहले एनस बनती है डिटीरोस्टोम में। ओके, तो ये हम हाँ ये डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, बस आप सिर्फ ये लिख लो, करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिटीरोस्टोम, वो हमारा फीचर है। Now I have started with blastula, formation of blastula or blastocyst. Blastula और blastocyst stage में अच्छा म्यूट योरसेल्फ, किसी का माइक ऑन है? तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट। अब जब वो मॉरुला स्टेज आ गई, मॉरुला स्टेज बहुत सारे गुच्छे हैं,
और ये ब्लास्टोमियर्स थे। ब्लास्टोमियर्स जो हैं बाहर वाले थोड़े बड़े हो जाते हैं अपने आप। इन सबको मैंने क्या नाम दिया था अभी? ब्लास्टोमियर्स। यस और नो? यस बेटा ये देखो, यस no. ये देखो, ये ब्लास्टोमियर्स थे। मैंने आप लोगों को बोला था ये मॉडुला स्टेज में जो छोटे छोटे सेल्स हैं इनको बोला गया था ब्लास्टोमियर्स। आई हैव रिटन दिस। तो ब्लास्टोमियर में बाहर वाले बड़े हो जाते हैं, अंदर वाले छोटे अपने आप। बाहर वालों को बोलेंगे मैक्रोमियर्स, अंदर वालों को बोलेंगे माइक्रोमियर्स। और फिर क्या होता है, अपने आप जो बाहर के सेल्स जो बड़े हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे, अंदर के सेल्स जो हैं वो डीजनरेट होने शुरू हो जाते हैं। मैक्रोमियर्स वैसे के वैसे रहेंगे, जो माइक्रोमियर्स थे वो खत्म हो जाते हैं, खाली जगह फॉर्म करेंगे, एंड दिस कैविटी इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील। अंश दोबारा से सुनना बेटे, जिसको नहीं समझ आ रहा वो ये डायग्राम एक बार फिर से देखो। एक सेल था जाइगोट, जाइगोट ने डिवाइड किया दो में, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 8, 8 से 16, फिर 32 सेल स्टेज, और इस स्टेज को हमने दे दिया मोरुला। इसमें जो सेल्स बने हुए इनको नाम दिया था ब्लास्टोमियर्स। जब यहाँ आ गया ना, ये ब्लास्टोमियर स्टेज है, अभी ये अटैच नहीं किया। फिर इसके बाद क्या होता है, ये जैसे ही रोल डाउन नीचे होता है अपने आप इसके बाहर वाले सेल्स बड़े हो जाते हैं मैक्रोमियर्स, अंदर वाले छोटे रह जाते हैं माइक्रोमियर्स, और सेल्स जो माइक्रोमियर्स वो एकदम इकट्ठे हो जाते हैं और बीच में कैविटी शो कर देते हैं व्हिच इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील। इस स्टेज को विद ब्लास्टोसील कैविटी इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट, जिसका नाम मैंने टॉप पे लिखा हुआ है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। ब्लास्टोसील स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें जो ये है, दिस इज एम्ब्रियो, ये हम है, ये बच्चे होते हैं, दिस इज एम्ब्रियो। Now I'm moving to next page, then it will be more clear to you. एक्सक्यूज मी मैम। Yes. मैम एक बार ये ब्लास्टोसील वाला समझा दो फिर से। हाँ बच्चे, अंदर से कैविटी बन जाती है, खाली जगह बन जाती है, उसको नाम दे दिया ब्लास्टोसील। जो खाली जगह है ना अंदर की, दैट इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील। ये स्टेज तो ब्लास्टोसिस्ट है, तो ये सेल्स छोटे सेल अंदर के अंदर रह गए, ये छोटे सेल्स से ना माइक्रोमियर, ये एकदम कंपैक्ट हो गए, एक जगह रह गए, और तो खाली जगह रह गई। दिस कैविटी इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील। नाउ मेकिंग डायग्राम वंस अगेन। बाहर के मैक्रोमियर्स हैं, अंदर वाले माइक्रोमियर्स हैं, समझ आ रहा है? ये सारे माइक्रोमियर्स हैं। अब जो इन, और ये बीच में कैविटी है जिसको हम नाम दे रहे थे ब्लास्टोसील कैविटी। अब कुछ सेल्स इसमें यहाँ पे हैंग करते हैं, ज्यादा बड़े हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज रॉबर सेल्स। RAUBER है, रॉबर सेल्स। ये मैंने बताया हम है, एम्ब्रियो है, जब हम मदर बॉडी में थे, एम्ब्रियोनल नॉड, ये अटैच हुआ है मदर यूट्रस से, और यहाँ पे जो सेल्स हैं दे आर कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। तो दिस इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। Blastocyst has outer layer of bigger cells, inner layer of smaller cells. तो उसमें भी एक एम्ब्रियोनल नॉर्म है, एक रॉबर सेल है, ब्लास्टोसील कैविटी है, सिर्फ नाम याद करना है। एंड रॉबर सेल जो मैंने नाम दिया, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। ओके, I'll make you write down in the next class कितने बच्चों को आज का टॉपिक दैट इज फर्टिलाइजेशन कंप्लीटली क्लियर है। फिर उसके बाद जो हमने फर्टिलाइजेशन में स्टेप्स पढ़े थे, अराउंड 7 स्टेप्स थे फ्यूजन ऑफ गैमीट तक। फिर जब जाइगोट बन गया, यू कैन सी हियर इट इज द जाइगोट इज ऑलरेडी फॉर्म। जाइगोट बनने के बाद वो मोरुला के बाद आज हमने जो पढ़ी है ब्लास्टुला स्टेज। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर टिल हियर?
let me know. Okay. So Harsh, Khushi, Kritika, Khushi clear है बेटे? Khushi? Yes, very good. ठीक है, तो Ansh, yes, I'm waiting for you. Ansh and Utkarsh. Okay. Ansh clear है बेटे यहाँ तक? If yes, then I'll repeat once again in the next class. अच्छा, please let me know if you have any doubt. Just go through this chapter from your NCERT and make your notes also. अगर किसी को कोई doubt है, you can just मैम ये चैप्टर खत्म है? नहीं अभी तो बहुत